So hello students, today we will going to solve a problem related with overhanging beam. So first of all, read the problem carefully. Draw the shear force and bending moment diagram for the overhanging beam. So the type of beam is overhanging. The type of beam is overhanging, and the type of beam is overhanging, and it carrying a uniformly distributed load of 2 kN per meter. The type of one load is uniformly distributed, that is 2 kN per meter over the entire length, and a point load of 2 kN as shown in figure. The figure is also given in this problem, and draw the shear force and bending moment diagram for this problem, and also locate the point of contraflexure. Point of contraflexure. So what is the point of contraflexure? We all are well known aware about how to draw the shear force bending moment diagram of different beams like simply supported beam and cantilever beam. But the term contraflexure is new to us. So what is contraflexure? Contraflexure is a point in bending moment diagram where the bending moment changes its sign. Means it travels positive to negative, it may travels positive to negative, it may travels negative to positive. So in short, where the bending moment changes its sign is known as point of contraflexure, and it appears only for overhanging beams. The point of contraflexure is appear in overhanging beams, and the type of beam we may call overhanging. Overhanging is a type of beam where the each end of the beam is not supported. Means हम लोग कोई भी बीम को ओवरहैंगिंग कह सकते हैं. आइदर इसका कोई भी एक एंड फ्री हो सकता है, इसका दो एंड फ्री हो सकता है. जैसे ये जो बीम है, इसका जो राइट हैंड जो एंड है वो फ्री है, मतलब ये जो एंड है इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये हैंगिंग कंडीशन में है. और ऐसे भी हो सकता है इसका लेफ्ट हैंड सपोर्ट भी हैंगिंग कंडीशन में हो भी सकता है. तो कोई भी एक एंड अगर हैंगिंग कंडीशन में है तो उसको हम लोग ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग draw the shear force and bending moment diagram, हम लोग को we have to calculate first the reactions. तो वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल taking moment with respect to point A. With respect to point A, that means RA into 0, because there is no distance between RA and A, and after that there is a uniformly distributed load which is over the entire length. Means the length of the beam is 6 and the value of UDL is 2 kN per meter. That means the total load is 2 into 6. 2 into 6 is the total load, and always the uniformly distributed load is acting from the CG of any section. So the total length is 6. That means it will act from the middle of the section. That means it will act from right hand side, 3 meter from right hand side and 3 meter from left hand side. So 2 into 6 is the total load, and 3 is the distance from point A. And there is another point, there is RB there, and RB is equal to RB into 4. RB into 4, and 2 kN is also there. There is a point load, so 2 into 6, that is equal to 0. After simplifying, we can easily find out the value of RB. So 4
RB is equal to 12. That is, and we know the total load is RA. The total load is RA minus 2 into 6 plus RB minus 2 is equal to 0. And the value of RB is 12. That means after putting the value of RB, we can easily calculate the value of RA, and that is equal to 2. And these two are kilonewton. Okay. So हम लोग का जो फर्स्ट काम था, the value of RA and RB, we have calculated the value of RA and RB. The value of RA is equal to 2 kilonewton and the value of RB is equal to 12 kilonewton. और हम लोग जैसे इन शॉर्ट सीखे थे, एट फर्स्ट हम लोग शेयरफोर्स डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं. मतलब डायग्राम से ही हम लोग कैलकुलेशन का जो वैल्यू होगा वो पुट कर सकते हैं इजीली. वो बहुत इजी प्रोसेस है. और उसके बाद हम लोग बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे. तो यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन फॉर एसेट. तो कैलकुलेशन क्या होगा? एसेट डायग्राम जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो फर्स्ट क्या है, आरए का जो वैल्यू है वो 2 किलोमीटर है. आरए का जो वैल्यू है वो 2 है. वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो पॉजिटिव में ट्रैवल किया और वो 2 चला आया. और उसके बाद हम लोग बी पॉइंट तक क्या है, बी पॉइंट तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है. बी पॉइंट तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है. उसका वैल्यू है 2 into 4 that is equal to 8. एंड आरए का जो वैल्यू है, वो क्या है, वो है 2. उसके मतलब है ये 2 से, और यहाँ पे 2 into 4 that is equal to 6 है. that is equal to 6 है. तो ये कितना जाएगा? तो शेयरफोर्स डायग्राम में एट पॉइंट ए SF is equal to 2 and at point B SF is equal to 2 minus 2 into 4. so इसका वैल्यू जो आएगा -6 आएगा. उसका मतलब ये तो B पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो 2 से ये -6 आएगा. ठीक है. और उसके बाद क्या है, B से और B से जो ये C पॉइंट है, तुम लोग बेंडिंग जो ओवरहैंगिंग बीम है उसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर का समेशन इमेजिन कर सकते हैं. जैसे B से जो C सेक्शन है उसका एक एंड सपोर्टेड है और दूसरा एंड फ्री है, इसको हम लोग कैंटिलीवर कह सकते हैं. तो कैंटिलीवर के जैसे हम लोग कैलकुलेशन किए थे उसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर छोड़ो, तो B पॉइंट में, एट B पॉइंट में ये -6 तक आ गया. और B पॉइंट में क्या है, B पॉइंट में RB एक फोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. उसका जो वैल्यू है वो है 12. उसका मतलब है -6 यहाँ पे था, वो फिर से -6 से 12 ऊपर जाएगा. ये -6 था, ये +6 ऊपर जाएगा, क्योंकि -6 प्लस यहाँ पे RB है, तो ये +6 में ट्रैवल करेगा. तो B पॉइंट में उसका जो रिजल्टेंट शेयर फोर्स आएगा, वैल्यू आएगा, वो +6 होगा. और उसके बाद क्या है, उसके बाद B से C तक क्या है, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है. और उसका वैल्यू कितना है, 2 into 2 that is equal to 4 है. 2 into 2 that is equal to 4 है. तो क्या होगा, एट पॉइंट C क्या होगा, देखो शेयर फोर्स becomes 2 into 2 that is equal to 4.
डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये जो यूडियल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये 4 नीचे जाएगा, ये 4 नीचे जाएगा, तो इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, और 2 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जाके मैच करेगा। तो ये जो टोटल वैल्यू है ये हो गया हम लोग का शेयर फोर्स डायग्राम, ये हो गया हम लोग का शेयर फोर्स डायग्राम। ये हो गया हम लोग का शेयर फोर्स डायग्राम। जैसे कैंटिलीवर में भी किए थे, जब हम लोग यहाँ पे लोडिंग रहता है तो क्या हम लोग क्या किए थे, ठीक से राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड जब फोर्स होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो 2 किलोन्यूटन था, इसको 2 किलोन्यूटन कंसीडर किया, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या है, यूडियल है, तो 2 × 2 4 है, और ये 2 प्लस होगा, तो 2 यहाँ से आकर यहाँ पे 4 तक आएगा, तो 6 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये हम लोग का शेयर फोर्स डायग्राम। एट पॉइंट सी ये होगा 4, ये तो 6 था, 6 माइनस 2 × 2 प्लस, तो ये 0 पे आके कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और उसके बाद हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, पॉइंट ए में 0 होगा, क्योंकि उसमें कोई फोर्स नहीं है, तो इसमें एट पॉइंट ए द बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0, द बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे RA × 0 इज इक्वल टू 0। एट पॉइंट बी, पॉइंट बी में क्या है, पॉइंट बी में देखो यहाँ पे बी पॉइंट है, तो ये RA है, RA का वैल्यू है 2 × 4, तो 2 × 4, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को हम लोग अगर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को हमको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा है, यहाँ पे देखो डाउनवर्ड 2 किलोन्यूटन पर मीटर यूडियल है, तो यूडियल का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और वो ऐसे भी है, और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट का जो डायरेक्शन है RA फोर्स के लिए वो क्लॉकवाइज है, क्योंकि वो ऐसे कम कर रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको हमको नेगेटिव लेना है। तो 2 × 4 उसका टोटल लोड है, और वो हमेशा मिडिल से कम करेगा, तो मिडिल से कम करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2 है, तो जो वैल्यू आएगा ये 8 होगा, तो टोटल जो वैल्यू आएगा वो होगा हम लोगों का 8 होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू है शेयर फोर्स का ये 0 है, और जहाँ पे शेयर फोर्स का वैल्यू 0 होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। और एक बात है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, और एक बात है, ये जो नेचर है, अगर यूडियल होता तो बेंडिंग मोमेंट का जो नेचर है वो पैराबोलिक होता है, तो थोड़ा ऊपर में करते हैं, इसका मतलब है ये अगर -8 है तो उसका जो नेचर है ऐसे -8 हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं जो शेयर फोर्स जहाँ पे 0 हो रहा है उसको अगर हम लोग ABC, इसको अगर हम लोग D पॉइंट में नोटिफाई करते हैं तो क्या होगा, सेक्शन लेना चाहिए D पॉइंट तक, मतलब A और B पॉइंट के बीच में शेयर फोर्स का वैल्यू 0 है, तो अगर हम लोग सेक्शन लेते हैं मतलब कैसे होगा, ऐसे है, ऐसे RA है, और RA से X डिस्टेंस, तो मतलब शेयर फोर्स का इक्वेशन क्या आएगा,
शेयर फोर्स का इक्वेशन आएगा आर ए इंटू एक्स माइनस आर ए, शेयर फोर्स का इक्वेशन क्या आएगा, एक फोर्स है आर ए और दूसरा है 2 किलोन्यूटन पर मीटर, तो माइनस 2 इंटू एक्स, ये होगा हम लोग का आर ए। और बेंडिंग मोमेंट को मैक्सिमम करने के लिए शेयर फोर्स को जीरो करना है, तो आर ए का वैल्यू है 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 1। सो फ्रॉम 1 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट -8 हो गया है, और हम लोग जो कैंटिलीवर जो बीम हम लोग कैलकुलेट किए थे, कैंटिलीवर में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग सी पॉइंट से अगर कैलकुलेट करते तो और भी इजी होगा। सी पॉइंट से अगर देखते हैं तो 2 इंटू टू मतलब कैंटिलीवर का हमको फ्री एंड से कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ऑलवेज ये जो एंड है इसमें 0 होगा, तो इससे ऐसे होगा, तो उसका मतलब है एट पॉइंट सी द बेंडिंग मोमेंट विल बी 0। और पॉइंट डी में भी हम लोग देख सकते हैं 2 इंटू टू, ये 4 है, और ये 2 इंटू 1, तो 4 प्लस 4 जो होगा वो 8 होगा। और बेंडिंग मोमेंट जो होता है कैंटिलीवर में उसमें हॉगिंग होता है, तो हम लोग नेगेटिव में कंसीडर करते हैं। तो अभी आते हैं, ये तो हम लोग का शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट हो गया। और फिर जो बात है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हमने क्या बताया, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन एक पॉइंट है जहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रैवल करता है। तो अगर मान लो ये जो है ये हम लोग का जो ई पॉइंट है जहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, तो अगर ई पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग इजीली पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो ई पॉइंट है ये भी ए एंड बी पॉइंट के बीच में है, ए एंड बी, ई लोकेटेड बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। तो हमको एक बेंडिंग मोमेंट का एक इक्वेशन ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम ये जो सेक्शन है, ये भी सही है क्योंकि x यहाँ पे x डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ये जनरलाइज है, तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हम लोग क्या होगा, दिस पॉइंट में आर ए इंटू एक्स, आर ए का जो वैल्यू है वो 2 है, 2 इंटू एक्स, उसके बाद 2 इंटू एक्स है, और वो जो मिडिल से हम करता है तो x/2 होगा, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2x² 2। तो अगर इसमें हम लोग इसको अगर 0 करते हैं तो x का वैल्यू जो आएगा वही होगा हम लोग का पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन का वैल्यू। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे x के पोजीशन में 1 पुट करना है, तो 1 पुट करने से जो आएगा वही होगा हम लोगों का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। और बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू आर ए इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू x/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो ये 2 आएगा, और यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं तो ये 1 आएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है वो 1, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं x का वैल्यू, और यहाँ पे भी 1 पुट करते हैं, तो वो होगा 1 किलोन्यूटन मीटर। और अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, इसको हमको 0 करना है, तो इसको 0 करने से क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू x², तो 2 इसको 0 करने से 2x इज इक्वल टू x² आएगा, तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 2 मीटर डिस्टेंस पे है, लेफ्ट हैंड साइड से 2 मीटर डिस्टेंस पे है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन।
और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो है वो 1 किलोन्यूटन मीटर है। तो ये हो गया हम लोगों का एक ओवरहैंगिंग बीम का प्रॉब्लम। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको एक सेक्शन लेने के बाद जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है उसको जीरो पुट करना है, क्योंकि जहां पे हमने साइन चेंज करता है बेंडिंग मोमेंट वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है। तो ऐसे और एक प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे, तो ये प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लो, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम